Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to the part 2 of the story of my life. If you have watched the part 1, I would like to thank you guys so much for listening to me. And yes, here we are with part 2. And if you haven't watched the part 1 of the story of my life, I would request you to please go watch that. I have linked it in the description box and only then to start with this video. Okay, so let's start with part 2. In this video, I'm going to talk about the phase of my life which is filled with a lot of happy moments, a lot of sad moments, and a huge transformation, a big shift to my personality as well because of the things that I went through, and I'm going to talk about each and everything today. You know that through my story I am trying to tell you guys to accept the things that are going around you and to accept it and to seek for help. This is what we are going to learn through my story. So once I set myself free from that toxicity, I could see that a lot of good things started to unfold. And also to say, at that point of time, while I was dealing through that phase, I just wanted to go out somewhere and I just wanted to leave everything. And luckily, once I came out of that relationship, a lot of good things started to fall in place. For example, soon after I left him, I met my current partner with whom I am staying in Delhi right now. I met him, we started having conversations, and he just made me feel so much loved, comfortable, and above all respected. And that was something that I craved for all these years, and I realized that. But we didn't have much time together because also I got a job in Air India that I'm doing currently right now, and I had to leave for Mumbai, and we didn't had much time together. So I was not, so much serious about it with my current partner at initially, because I thought that, he's also gonna forget me once I leave for Mumbai, because we have just met once and we were just starting to have conversations. But as I left for Mumbai, all those 4 to 5 months I was there for my training and I could not come home, I used to have continuous conversations with him. Okay, and it never felt like we have just met once or we have just started talking. It just felt like we know each other since like 2 to 3 years, and it was like we were destined to meet each other. And because of all of these things happening so quickly, I didn't even had the time to sit and think about the things that happened to me in the past or go through that breakup phase, to say, because people have that kind of phase. Of course they do have after such a long relationship, and especially if it was a very toxic one, then they will have many things in their mind and heart. But I really didn't have those time to indulge myself in those things. Yes, sometimes it would just come back, flashback would come back while I'm sitting alone or if I encounter any kind of such situations. But the partner that I have right now, he made sure that I come out of that. And because of him, I was always indulged in some good things, and then I just moved on, to say. I just moved on at that point of time. And it was a new job, new things, and I was trying to cope up with each and everything, trying to make new friends and trying to do a fresh start with everything. And soon after my training and everything got over, I shifted to Delhi again because Delhi is my base. And my current partner, he came to Delhi to meet me, and then we started living together. He started his career as well here in Delhi. So everything just happened like a magic. It didn't take much time for good things to unfold. And what I realized, that it was just a matter of fact, it was just a matter of time for me to accept that I was in a bad phase, that was bad for me, and I had to get out of that. And to get out of that was such a long process, you guys. And once I got out of that thing, everything just started to change, everything just started to be in my favor. And I felt so happy. And as I told you, since my childhood, my parents have created that safe space and boundary for me, always pushing me, motivating me, encouraging me, showing me that I am loved, confident, strong, so many things like that. But once I stepped into the reality, I met people whom I trusted, whom I loved, but it's just all messed up. So again, after that phase, when I met my current partner, I started to create again that safe and comfort space for myself within him. He started becoming my safe space. Till now, he is. Apart from my family, he is the only one with whom I feel safe and comfortable and things like that. But also, I forgot at that moment I have to
गो आउट। अब मुझे बाहर जाके भी काम करना है, मुझे लोगों के साथ मिलना है, फिर से कहीं यू नो फिर से बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो मेरी फेवर में ना हो। तो वो चीज़ ना मैं भूल गई थी, क्योंकि वो जो मेरा फेज़ था, टॉक्सिक सा जो फेज़ था, उस फेज़ को पार करके आने के बाद जब मुझे सब कुछ इतना अच्छा मिल रहा था और मेरा पार्टनर भी जब इतना सपोर्टिव था एंड टोटली ऑपोजिट टू व्हाट जो मेरा पास्ट में था, तो मैं ना कहीं भूल गई थी कि फिर से वो सारी चीज़ें हो सकती है। और वो चीज़ बस रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही लिमिटेड नहीं है। आप बाहर जाते हो, काम करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए सिचुएशंस होते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वैसा हो। तो उसके लिए ना कहीं आपको प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं वो चीज़ भूल चुकी थी, और अगेन आई स्टार्टेड टू बीइंग लाइक नो, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, दैट वाज द ओनली पर्सन हु वाज टॉक्सिक, एंड अब मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने ना ऐसे एक सेफ स्पेस और बाउंड्री फिर से मैं क्रिएट करने लग गई, और मेरा एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है कि थोड़ा सा भी अगर कोई मुझे टॉक्सिक लगे या थोड़ा सा भी मेरे फेवर में ना हो, देन आई जस्ट वैनिश, मैं भाग जाती हूँ वहाँ से, मैं उसे फेस नहीं करती हूँ। और ये चीज़ मुझे तब नहीं समझ में आया कि मैं इसे क्यों नहीं फेस कर रही हूँ। मुझे लगा कि इग्नोर करना ही बेटर है। लेकिन इग्नोर अगर आप करते हो किसी चीज़ को, तो आप बस उस चीज़ को इग्नोर करो और भूल जाओ, तब तक ही वो चीज़ सही है। लेकिन आप इग्नोर करो, लेकिन आप उस चीज़ को अपने साथ में लेके आओ, दिमाग में बिठाओ उस चीज़ को, तब वो बहुत ही बुरी हो जाती है। वो रहती है आपके साथ, एंड इट जस्ट कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। सो दिस इज समथिंग सो दिस was something that started to happen when I started working। क्योंकि मेरा जो काम है ना, उसमें हम रोज़ 10 से 15 नए लोगों को मिलते हैं। एवरी ड्यूटी में हमारे साथ नए लोग एनकाउंटर होते हैं। हमारे लॉन्ग शिफ्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20 आवर्स की स्ट्रेट शिफ्ट होते हैं, आपको नए लोगों के साथ बिताना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको पता लगती है लोगों के बारे में। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी था कि ये सारी चीज़ें फिर से हो सकती है, एंड आई नीड टू बी केयरफुल। और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे ना छिपना आ गया। एक तो मैं वैसे ही डरी हुई, सहमी हुई ऐसी बन गई थी, और इसके बाद ना मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था। मुझे सीखना था कि मैं इस चीज़ों को कैसे फेस करूँ, ना कि मैं छिप के किसी के सहारे चलूँ। तो आपको समझ में आ रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने वो सहारा एक ढूंढ लिया था मेरे करंट पार्टनर में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सेफ, रिस्पेक्टेड और लव्ड फील होने लगा था। और घर पे रहती थी, आई वुड बी कॉन्फिडेंट अगेन, खुशी एकदम, सब कुछ अच्छा। मैंने जैसे आपको कहा, जैसे मैं पहले थी, वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन मैं धीरे धीरे जब काम करना स्टार्ट किया, मैं बाहर जाने लगी, मिली मैं कुछ लोगों से, तो मैं चुपचाप, थोड़ी एंटी सोशल टाइप्स, ज़्यादा बातें नहीं, चुपचाप रहना, ज़्यादा शेयर नहीं करना, उस तरीके की मैं बनती गई। और बीइंग लाइक दैट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आई वॉज नेवर लाइक दैट। आई वॉज ऑलवेज एन एक्सट्रोवर्ट। बहुत सारी बातें करना, नए नए दोस्तों बनाना और सिखाना, लोगों को बोलना, ये सब चीज़ों, दिस वॉज माई पर्सनैलिटी। बट अभी ना क्या हो रहा था कि आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल। आई फेल्ट इरिटेटेड। अगर लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे इरिटेशन होने लग रहा है। और ऑफकोर्स ग्रुप्स में होते हैं कि लोग कहीं किसी की बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे वो सब चीज़ें नहीं पसंद। एंड आई स्टार्टेड टू मेक माई सेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जो कि मेरे वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। आई स्टार्टेड टू फियर पीपल। अगर कभी कोई भी कुछ मुझे बोल देता था, छोटा सा चीज़, तो आई वुड जस्ट गेट द फ्लैश बैक ऑफ दोज थिंग्स जो मेरे पास्ट में हुआ था, जो भी चीज़ें मुझे पहले कही गई थी। इतने सालों के लिए मैं जो चीज़ सुनते आ रही थी, तो अगर थोड़ा सा भी वैसा कुछ टॉक्सिसिटी या थोड़ा सा भी डिमीनिंग, या पीपल आर नॉट काइंड, थोड़ा सा भी वैसा कुछ होता है, तो आई वॉज लाइक टक से, लाइक फ्लैशबैक, कि सी, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसी ही है। तो ये मोमेंट आ रहा था धीरे धीरे मेरे लाइफ में। तो मेरा बस यही था कि वर्क घर, काम और घर, इन दोनों के बीच और कुछ था ही नहीं। इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन भी कर लिया था, आपको अगर पता है तो। उसके बाद ही मैंने जिम वगैरह ज्वाइन किया और वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये जो था ना मेरा घर काम, इसकी वजह, इसके अलावा और कुछ था नहीं मेरे पास। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा सेफ सा स्पेस बन गया था मेरे घर पे। इसकी वजह से ना मुझे काम में जाने के लिए मुश्किल होती थी।
क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी थी इस लेवल तक कि मुझे डर लगने लग गया था लोगों से। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, जो ये वर्क लाइफ है ना, जो स्पेशली जो मेरा है फील्ड, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। और आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ मिलते हो कि अगर आप वो आई डोंट गिव अ शिट वाला माइंडसेट अगर आपका नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बिकॉज़ ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो आते हैं, बोल के चले जाते हैं, एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आप अभी तो मिले हो, ऐसा क्या हुआ है कि आपने ये सारी चीज़ें बोल दी। तो लेकिन जो सोचने वाला इंसान होता है, लाइक मी, डीप थिंकर्स, हमारे लिए ना इस तरीके की जगह में सर्वाइव करने के लिए वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड पहले। यू कैन नॉट बी लाइक आई विल गो एंड हो जाएगा जैसे हो जाएगा, नहीं होता है। मेरे साथ तो नहीं ही हुआ। बिकॉज हर एक छोटी चीज़ें, हर एक माइन्यूट डिटेल्स, या कभी कोई कुछ भी छोटा सा बोल देता था, तो मेरे साथ वो चीज़ हमेशा रह गया। मैंने बहुत बार अपने घर पे आके और मेरे पार्टनर से और मेरे पेरेंट्स से भी डिस्कस किया कि मेरे से ये काम नहीं होगा। मैं रोज़ रोज़ नए लोगों के साथ बैठ के, उठते बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि यू नो एंड स्लोली आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि आई हैव नॉट फुली मूव्ड ऑन। जो पहले हुआ था हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल के आई, लेकिन जो सारी चीज़ें हुई थी और जो इम्पैक्ट था वो अब धीरे धीरे दिखने लग गया था। जैसे कि कोई चिल्ला दे किसी बात पर, या कोई झगड़ा कर रहा है, या किसी ने मुझे आके कुछ बोला, या स्पेशली जो लोग बोलते हैं ना कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो रहा है तुमसे, छोड़ दो। उस तरीके की चीज़ें जो होते हैं ना, वो जो बिहेवियर पैटर्न होता है, वो जो वॉइस का जो साउंड होता है, जो टोन होता है, ओ माय गॉड, those things started to trigger me and still does. And वर्क और मेरी वर्क स्पेस में भी ये सारी चीज़ें मैंने फेस की। एंड जो इस फील्ड में है वो जानते हैं कि ये कैसा होता है, काफ़ी लोगों ने फेस किया होगा। वो सारी चीज़ें जो हो रही थी वो सारी मेरी पास्ट में जो हुआ था मेरे साथ, उसके साथ आई वॉज कनेक्टिंग इट, एंड आई वॉज गोइंग बैक देयर एवरी टाइम। सो दैट ट्रॉमा वॉज स्टिल देयर इज़ वॉट आई अंडरस्टूड। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें होने लगी। एंड अगेन, जैसा मेरा आदत था, मैंने घर पे या मेरे पार्टनर को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। आई यूज्ड टू शो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ हैप्पी, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन मुझे ना उसके बाद धीरे धीरे अपने वर्क में जाने को भी डर लगता था। स्टार्टेड टू फियर माई वर्क प्लेस, आई स्टार्टेड टू फियर पीपल। आई डेंट लाइक वेयर देयर वर टू मेनी पीपल, आई वॉज ऑलवेज कॉन्शियस। आई वॉज लाइक कि अगर इसने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाऊंगी, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। सो आई वॉज स्कैर्ड, वो फियर था, सोशल एंजाइटी। और ये सारी चीज़ें होने लगी मेरे साथ। तो धीरे धीरे ये चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लीविंग माई जॉब। ये चीज़ ना देखते देखते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं ना ये मोमेंट तक पहुंच गई थी कि मैं झूठे एक्सक्यूजेज, रीजंस बना के, बीमारी के रीजंस दे के मैं नहीं जाऊंगी। मैं आई वाज लाइक मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज बीमार हूँ, मुझे ऐसा हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ होता था। ऑल आई यूज टू हैव इज एनजाइटी। इतना ज़्यादा एंशियस फील करती थी व्हेन आई यूज्ड टू स्टेप ऑन माय कैब, और जब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ, ड्यूटी की तरफ, my heartbeat is rising and I'm like, again I have to face those people, again I have to, I just cannot, I cannot। और इतना ज़्यादा हो चुका था कि एक बार मुझे मेरे जो वर्क प्लेस में पैनिक अटैक भी आया था। एंड आई वॉज जस्ट सेपरेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। मैं अपने आप को सेपरेट कर रही थी सभी चीज़ों से, स्पेशली लोगों से। और जो मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल था पहले, डांसिंग, मेकिंग वीडियोज़, ये सारी चीज़ों से मेरा, आई वॉज लाइक नो, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे ऑन माई ओन। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे किसी को फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई मुझे कुछ बोल नहीं पाएगा, और मैं अपने आप में ही रहूँगी। ये मेरा जो है थॉट हो चुका था। एंड आई वॉज सो स्कैर्ड टू गो टू द वर्क, एंड विदाउट एनी रीज़न I was so scared, and I just felt like crying all the time, and I had these panic attacks अगर मुझे ड्यूटी पर बुलाया जाए तो। ये सारी चीज़ें हो रही थी, and I was like God, where am I going, what is happening। मुझे इस चीज़ से निकलना भी है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक दिन बोलती हूँ कि नहीं, मैं ठीक है, सब कुछ स्ट्रांग बनकर मैं जाऊँगी, कोई अगर मुझे कुछ बोलेगा तो मैं भी उसे बोल दूँगी। लेकिन जब वो मोमेंट आता था ना, पसीने छूट जाते थे मेरे। आई वॉज स्कैर्ड एज हेल। इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती थी, आई वुड बैक ऑफ। और इसके चक्कर में मैं 2 महीने के लिए
2 months I was at home. मैंने इतने सारे रीजंस बनाए और मैं ड्यूटी पर नहीं गई। 2 महीने के लिए मेरा काम बंद हो चुका था। अभी रिसेंट बात है, ये पास्ट मंथ, ये जो मंथ है अभी अक्टूबर, इसमें मैं फर्स्ट ड्यूटी फ्लाइट में गई हूँ आफ्टर माई दिस पीरियड ऑफ टाइम जो भी चल रहा था। जुलाई से ये बहुत एक्सट्रीम हो गया। अगस्त सितंबर वाज द वर्स्ट फेज, वर्स्ट मंथ्स इन माय लाइफ। जब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई तब धीरे धीरे मेरे पार्टनर को भी पता चलने लगा कि क्या हो रहा है मुझे। नहीं, ये तो तब तक किसी को पता ही नहीं था। देखो, और लाइक होता है, स्ट्रेस होता है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स होता है सबकी लाइफ में, वो सॉल्व कर लेंगे हम, क्योंकि मैं भी उन्हें बताती नहीं थी ये सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे ऐसा मोमेंट हो गया कि मैं अपना जो फ़ोन है ना वो फ्लाइट मोड पे डाल के रखती थी, ताकि मुझे ड्यूटी से कोई कॉल्स ना आए, कहीं से कोई कॉल्स ना आए। और मुझे किसी से बात भी नहीं करना है, ना ही मेरे फ्रेंड्स से, ना ही किसी से मुझे कुछ बातें ही नहीं करनी है। मुझे बस अपने आप में रहना है। आई कैन नॉट जस्ट फेस अगेन एंड अगेन द सेम सिचुएशन, अगेन एंड अगेन पीपल बीइंग रूड, यू नो। अगर थोड़ा सा भी कोई रूड होता था, थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता था, आई वुड जस्ट गो बैक। आई एम लाइक, व्हाई द हेल इज दिस पर्सन रूड? क्यों ये हो रहा है फिर मेरे साथ? यार मैं तो अच्छी हूँ, नाइस हूँ, इसके साथ अच्छे से बात कर रही हूँ, but still this thing is happening to me. So I always used to go back, and it used to traumatize me like hell. उसके बाद ये पॉइंट आया जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आई वुड क्विट माई जॉब। एंड मैंने बहुत सारे रीजंस बनाए अपने माइंड में ही। मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों को कैसे ये चीज़ बोलूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ टफ थिंग, राइट? दे आर वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग अभी स्टेबल हो रहा है। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारी चीज़ें करनी है मुझे लाइफ में, और अभी आई एम ट्राइंग टू गिव अप ऑन माई वर्क, माई ब्रेड एंड बटर। मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं हार जाऊँगी। एंड द फियर ऑफ फेलियर एज वेल, कि तुम चाह के भी ठीक नहीं हो पा रहे, यू वॉन्ट टू डू इट बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो इतना ज़्यादा गंदा फेज आ गया कि आई डिसाइडेड टू एंड एवरीथिंग। yes, I decided to just finish off everything, कि तब ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। ये फेज, ये चीज़ हो गई थी मेरे दिमाग में कि आई विल एंड एवरीथिंग एंड आई विल फिनिश एवरीथिंग, सो दैट मुझे कुछ फेस करना ना पड़े, एंड सब भूल जाएंगे कुछ दिनों में, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट लकीली माई सेवियर, माई पार्टनर, हम लोग साथ में रहते हैं, तो अगर कुछ भी मैं वैसा कुछ गलत करती हूँ तो उसे ऑफकोर्स पता चल जाएगा, क्योंकि हम साथ में ही रहते हैं, साथ में जिम जाते हैं, एवरी टाइम 24/7 वी आर टुगेदर। तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाई आर यू क्वाइट। हाँ, वो भी मुझे कभी फोर्स नहीं करता था जॉब पे ज़बरदस्ती जाने के लिए। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ही यूज्ड टू से कि टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, इट्स ओके। बट स्टिल उसे ओपनली मैं नहीं बता पा रही थी ये सब, क्योंकि मेरे पास भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। ऑफ कोर्स सबको एक्सपेक्टेशंस है मेरे से, एंड स्पेशली फ्रॉम योर लव्ड वंस। तो उनको मैं कैसे समझाऊँ, उनको मैं कैसे बताऊँ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और व्हाट आई एम फीलिंग। एंड द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस फेज इज़ टू मेक समवन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। एक तो आपको खुद एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और सेकेंडली आप किसी को समझा नहीं पाते हो, बता नहीं पाते हो ये चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। तो मेरे आई डिडंट हैड एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू एनीवन। आई वाज जस्ट लाइक, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एंड आई वुड जस्ट लेकिन मुझे ऐसा हो चुका था तब मेंटली, उसके बाद फिजिकली वो चीज़ें दिखने लगी थी। लाइक दिन भर सोते रहना, एक बेसिक चीज़ करना, उठ के ब्रश करके मुंह धोना भी was such a task, and I was like, कल सुबह ही ना हो। भी कल नेक्स्ट डे होता था, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, फिर से सुबह हो गया, एंड द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन, द सेम थिंग इज गोइंग टू रिपीट। इस फेज में मैं चली गई थी, और फाइनली मेरे पार्टनर को पता चला इसके बारे में, क्योंकि उसने देखा मेरे बिहेवियर्स में चेंजेस, मेरी बात करने के तरीके में चेंजेस, मेरा इंटरेस्ट जो सभी चीज़ों में हट रहा था, फ्रेंड्स के साथ आना जाना, इधर उधर करना, वीडियोस बनाना, जिम मैंने 10 days स्किप किया। तो उसने मुझे पूछा, तब मैंने आई जस्ट ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, and I started telling him all of these things. Initially he was shocked, he didn't understand कि क्या हो रहा है। Of course किसी को नहीं होगा ना ऐसा, किसी ने इसे देखा नहीं है। मैं खुद सोच रही थी कि what is happening, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो
उसे भी टाइम लगा इस चीज़ को जानने में, लेकिन उसने मुझे बोला कि यू टॉक टू योर पेरेंट्स, अपनी सिस्टर से बात करो, वो तुम्हें कभी बुरा नहीं बोलेंगे, दे विल अंडरस्टैंड यू एंड यू टेल देम. And then I started telling them, and they were shocked as hell because me, who was so much outgoing, confident, and I I was a different kind of person, but now just what happened to me? I was scared, crying. नीचे दुकान जाने में भी I was scared कि people will be there. I cannot नहीं छोड़ो, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं बात करना है किसी से. I was scared of people. This is what I would term as I was scared of people. I just started hating people, and I was hell scared, and I used to get anxious, so much anxious. I used to get panic attacks, and that is when I told my parents. उसके बाद मैंने अपनी sister और mother को ये बात कही, and they were so understanding, so supportive. उसके बाद they asked me to take professional help, and they told me that it was okay to be like this, it was okay to feel like this. कोई एम्बेरसमेंट वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत एम्बेरसिंग भी लगती थी. मैंने कभी, क्योंकि मैंने खुद अपना ये वाला साइड देखा ही नहीं था, और मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट, बहुत ही ज़्यादा लो और बुरा फील हो रहा था अपने लिए भी, कि चाह के भी आई एम नॉट एबल टू होल्ड अप थिंग्स एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड डू. तो मुझे हो रहा था कि मैं वीक हूँ, हाँ मैं फेलियर हूँ, हाँ नहीं हो पा रहा है मुझसे, एक सिंपल चीज़ भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं डर रही हूँ लोगों से, मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ. तो दे मेड मी अंडरस्टैंड कि इट्स ओके, यू टेक हेल्प, आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, आप जाओ, हेल्प लो, हम हैं आपके साथ, और ये फेज़ है ना, तो आप बाहर आ जाओगे इससे. इसमें कोई घबराने की या एम्बैरेस फील करने की बात नहीं है. तो उन्होंने ये चीज़ कहा. तो इसके बाद मुझे भी ये फीलिंग हो चुकी थी कि अब आई नीड हेल्प, अदरवाइज़ बहुत बुरा हो जाएगा. तो मैंने ये डिसीजन जब लिया अपने पार्टनर के साथ बात करने की, तो दिस वाज द बेस्ट डिसीजन. तो गाइस, दैट इज़ व्हाई आई से प्लीज़ टॉक. यू नो इट यू माइट फील, बहुत बोलना बहुत इजी है, आसान है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक. एक बार आप इस चीज़ के बारे में, जिसको आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उसको आप बताओ, उसको बोलो, वो 100% आपको समझेगा, एंड आप डेफिनेटली इस फेज से बाहर आ सकते हो. स्टिल आई एम गोइंग थ्रू दिस. बहुत कुछ चेंज हुआ है ये पास्ट मंथ्स में, बट अभी आई एम एबल टू टॉक, एंड एटलीस्ट I am able to keep these things in front of people, and I am not ashamed of this, because इट इज़ अ फेज, इट हैपन्स. ये आपने ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं किया है अपने आपके ऊपर. कुछ हो सकते हैं आपकी सिचुएशंस, कुछ पास्ट हो सकते हैं, कुछ ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं. फिर उसके बाद 2-3 दिनों के बाद मैंने अपना मन बनाया कि चलो ठीक है, आई विल गो एंड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प. एंड देन आई वेंट टू अ साइकेट्रिस्ट, और बहुत सारे टेस्ट हुए मेरे, एंड बहुत कुछ हुआ. तो आई वॉज diagnosed with depression and anxiety, especially social anxiety, and I was going through the phase of depression, is what my doctor analyzed. और ये डायग्नोसिस के बाद मुझे मेडिकेशंस दी गई, और मुझे मेडिकेशंस तो लेना नहीं था, बट इट वाज बहुत, वो वर्स्ट हो चुका था, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था. तो मैंने बस उन्हें बोला कि मुझे बस जैसे 10 दिन के ऐसे मेडिकेशंस दो, बिकॉज मुझे मेडिकेशन ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने हैं, बाकी और चीज़ों से आई विल ट्राई टू हेल्प माई सेल्फ. तो I took medications for few days, like almost a week and all. तो काफ़ी हेल्प हुआ थोड़ा मेडिकेशन से, बट स्टिल मुझे मेडिकेशंस हमेशा नहीं करना था. तो उन्होंने मुझे दिया एक मेडिकेशन कि अगर आपको पैनिक अटैक्स आए या बहुत एंशियस फील हो, तो कभी कभी उस समय आप ले लेना. बट आई स्टार्टेड माई थेरेपी स्टार्ट किए मैंने. काफ़ी अच्छा लगा बात करने के बाद. वंस यू स्टार्ट टॉकिंग एंड ब्रिंगिंग आउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, क्या क्या हुआ है, क्या है, तो होता है ना कि हाँ, मैंने निकाल दिया अपने आप से, और काफ़ी चीज़ें सीखी भी मैंने. तो हु वॉज आई गॉट अ क्लियर पिक्चर. मैंने जो पार्ट 1 में बताया मैं कैसी थी, मैं वैसी थी, और मैं वैसी ही बन रही हूँ अभी, फाइनली, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम. That is my energy. I am not someone who is scared, or because of that things हुआ. ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ. उतना ज़्यादा लंबा टाइम के लिए आपके साथ एक ही चीज़ बार बार हो रहा है, तो रह जाता है वो. मुझे लगा था कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, फिर से मेरे पास एक अच्छा पार्टनर है, फैमिली है, जॉब है, सब कुछ ठीक है, चलो सब कुछ सही हो जाएगा. बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. आई हैड नॉट
कम आउट, मैं उससे तो मूव ऑन हो चुकी थी, उसके लिए तो मेरे पास थोड़ा सा भी दया माया कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपने आप जो फेस करके आई थी उस चीज़ों से, वो चीज़ से मैं निकल ही नहीं पाई थी, और वो कहीं ना कहीं रह गया था। और एवरी टाइम सेम बिहेवियर पैटर्न या सेम चीज़ से या लोगों से मैं एनकाउंटर होती थी, आई वुड जस्ट वैनिश एंड रन अवे एंड इट वुड हॉन्ट मी एज हेल, जिसकी वजह से आई स्टार्टेड हैविंग सोशल एंजाइटी एंड फियर विद पीपल। स्पेशली अभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है, झगड़ा करता है, किसी को बुरा बोल रहा है, गाली दे रहा है, स्पेशली कि वो सारी चीज़ें ना सेट हो चुकी है माइंड में, वो पर्टिकुलर वर्ड्स, वो पर्टिकुलर सेंटेंसेस, जो एवरी डे आपको कहीं जा रहे कहीं जा रहे कहीं जा रहे, तो वो रह जाता है। तो दैट वाज द फेज आई वाज गोइंग थ्रू माई फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में अप्रोच किया, पूछा मुझे क्या हुआ है आपको, क्या हो रहा है। मैंने एक अनकट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एक मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था। वो व्लॉग अपलोड करने का भी रीज़न यही था कि मैं तभी कुछ नहीं कर पा रही थी, उठ के खाना बनाना, उठ के कुछ करना भी मेरे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो वीडियो मेकिंग इज़ समथिंग दैट आई लव, और जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैंने इसीलिए वो ब्लॉग भी बनाया था, सो दैट आई कैन टॉक एंड कीप डूइंग थिंग्स। अब किसी को सामने रखकर तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ कुछ भी, तो एटलीस्ट कैमरा के सामने मैं बोलूँगी तो इट वुड बी माई हार्ट आउट, आई एम गिविंग आउट माई हार्ट। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई ऑल्सो बी शेयरिंग सम टिप्स एंड थिंग्स जो मैंने स्टार्ट किया खुद को बेहतर बनाने के लिए, एंड स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट रियली हेल्प्स। बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको कहूँगी, जो इस वीडियो से आप लो अपने साथ, इज दैट एक्सेप्ट इट। अगर बुरा भी हो रहा है तो एक्सेप्ट करो, उसे एक्नॉलेज करो एंड टॉक। सेकेंड थिंग इज बताओ, कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस। आप फर्स्ट थिंग तो अगर आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ को, तो फिर वो कभी होगा ही नहीं, आप कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे उससे। प्लीज़ टॉक टू समवन, प्लीज़, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड से। एंड यस, तो अभी वही मेरा चल रहा है जर्नी। मेडिकेशंस तो अभी मैंने बंद कर दिया टोटली, बट थेरेपीज़ भी अभी मैं फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। कुछ दिन हो गए मैं थेरेपीज़ में भी नहीं गई हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी माई ओन मोटिवेटर एंड बी माई ओन मैं अपने थॉट्स को ही चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड स्पेशली जिम, जो मेरे पार्टनर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, वर्किंग आउट, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है गाइज। सो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड या कभी कभी होता है स्टिल थोड़ा सा मेरे पर्सनैलिटी में चेंजेस आए कि अभी आई एम थोड़ा क्वाइट, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक टू मच ऑफ सोशल गैदरिंग और दोज थिंग्स। थोड़ा सा मैं उस चीज़ों से दूर रहती हूँ क्योंकि अगेन लोग ज़्यादा रहेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेकिंग आउट ऑफ माई सेल्फ इज़ फियर। एक चीज़ होता है कि पसंद नहीं आना आपको, वो ठीक है, लेकिन आप डर रहे हो इसीलिए आपको पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज़ अ बैड थिंग, राइट। आपको उसमें डरना नहीं है, उसमें कुछ डरने वाली बात है ही नहीं। अगर आप खुद गलत नहीं हो, खुद गलत नहीं कर रहे हो, देन देयर इज़ नथिंग टू फियर। एंड दिस इज समथिंग आई एम टेकिंग आउट ऑफ माई सेल्फ, एंड आई नो इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस हो रहा है। बट द इमेंस लव एंड सपोर्ट जो मुझे मेरे सोशल मीडिया फैमिली देते हैं, आई एम वेरी ग्लैड। और इसीलिए ही मैंने आप सबको ट्रस्ट करके ये वीडियो बनाया है अपने स्टोरी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते थे। एंड आई नो आप इस चीज़ को अच्छे से लोगे। एंड अगर किसी को किसी चीज़ में ट्रिगर हुआ है, देन आई एम सॉरी, बट येस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट इज़ नॉट ऑल ग्लिट्स एंड ग्लैमर्स। ये साइड भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था, सो दैट वी कुड कनेक्ट। एंड यस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव लिसन्ड टू द एंटायर स्टोरी। एंड यस, ऐसे ही आप प्यार करते रहे, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड प्लीज़ talk, please accept if something is going wrong, and please talk to someone whom you trust and whom you love. That's all for today's video. I hope you liked listening to me. Thank you so much. I will come up with another video. Till then, see you soon. Take care.